we'll be having our third speaker from Faculty of Fisheries actually. Dr. Sharik Nazir Kadri sir. He is the Assistant Professor in Aquatic Animal Health Management Division. He is the alumni, as I said, and he has a lot of contribution in disease prevention and management. Sir will be delivering lecture on disease management in freshwater aquaculture. Participate in this program. And I have been interested in the topic that's related to disease management. So going with the theme of this MSME sponsored training program, it's more of the entrepreneurship related training program, right? But my part is mainly focused on disease management. So in case of any entrepreneurship related fisheries, management of disease is a prime focus. Nutrition diseases, disease management rather. We say that this is the backbone of any fish culture system. So you should have some basic knowledge, and most of the students who have studied under my guidance, they will be well accustomed with the diseases. But I will just take you through the important diseases and their management in freshwater aquaculture system, including the reef. Next. This is one of the lectures. I have been associated with the training program also. There also I have delivered a similar lecture, but that was also in the same theme related to freshwater aquaculture. So to start with the disease, it can be defined as an abnormal condition, right? So when fish is sick, we say that it's not able to behave properly, it's not able to feed properly, it's sluggish. So then we say as a disease. But these are actually three different terms which have been used quite synonymously: disease and illness and sickness. Disease is the underlying pathological conditions. जब disease होती है तो उसका क्या etiological reason होगा, कौन वो disease cause करता है? That can be a bacteria, virus or parasite. So that is the underlying agent which causes the pathology, and that pathology is manifested in terms of illness. So how a patient behaves, or how he responds, how he reacts to that disease. So we say that he is ill and he can manifest, because in case of humans, we can well describe our state of mind when we go to a physician, right? So, but in case of fish, it's quite difficult. So there we assess the clinical signs. So in case of humans, there is symptom, but for fishes, there is clinical sign. Although we use these terms quite synonymously, but there is a clear demarcation that clinical sign is manifested by the fish, and it has to be interpreted by the expert. But for humans, therein we say that we have symptom, we have fever or any other symptom. So when the fish manifests the clinical signs, and that can be an indication that fish is diseased. That disease can be a nutritional disease, that can be an environmental disease, that can be a pathological condition. So जो भी disease होगी, तो उससे fish के behavior पे असर पड़ेगा. Next. These are a common triad that we use. We call it epidemiological triad. This is related to not just to animals but to fishes also at large. So this epidemiological triad, in that we say that there are three components: environment, disease agent, and the host. So each factor is responsible for disease outbreak. For example, you have a fish; its immune status is quite high, but you have a disease agent also, and there is proper environment, but the disease cannot flourish because the health condition of the fish is quite, we can say, par with this condition. But if you have a host which is susceptible to disease, right? So in that sense, we say that the host is more susceptible because it has a favorable environment. Favorable environment means there may be a bad water quality, right? The disease agent has two forms. One is its virulence is quite high, and sometimes it's aberrant. Recently, we have been conducting one experiment in our lab, where Aeromonas hydrophila is a common pathogen there. And to our surprise, the pathogen is motile. It is able to grow, it's able to multiply on artificial media, and we can
check its motility on the microscope. But when you inject it into the fish, it's not causing disease, right? So that's another factor. Means disease-causing agent is there, but its virulence and pathogenicity is quite low. So you have to check all the aspects. So when the virulence is high, the host is susceptible, and the environment is also favorable. These three coincide, and that results in disease outbreak. That's what it has mentioned here. You can see the interaction of these three. It results in disease outbreak. So you have to try to make these three components as far as possible, right? Or at least one of them, so that the disease outbreak chances are quite reduced. So this is the preliminary protocol to check whether the fish is diseased or not. Prior to conducting experiments in the lab, you have to go through this protocol. So there are different reflexes wherein you can check whether the fish is diseased or not. First is the escape response. So if a fish is in a tank, मछली जो है वो पानी में है, तो आप उसके अंदर अपना हाथ डालोगे, तो मछली क्या करेगी? वो रिएक्ट, जो हेल्दी फिश होगी वो रिएक्ट करेगी. It will try to move away from the source of stress. So it will try to swim, but it will swim fast. So उसके different तरीके हैं. So to check whether the fish is diseased or not, to get an idea, if the fish swims, its pattern of swimming should not be like, it should not move in a jerk like this. It should move in a C shape. We call it C star. So when the fish, for example, this is the source of stress. तो मछली है, आप यहाँ से कुछ डाल रहे हो चीजें, तो वो ऐसे वापस निकलेगी. So there will be a C curve. We call it C star. This is an indication that fish is healthy. If the fish is diseased, it can move, but the C star may not be there, right? So it can move like this, but normal healthy fish moves like this. It will move away from the source of stress. Or some fishes can move in parallel to the source of stress, but that's an indication that fish is not well. This is just a preliminary check. So if there is a proper escape response, आप fish को छोड़ सकते हो, वो ठीक है. अगर वो यहाँ fail हुई, उसका escape response ठीक नहीं है, then you have to check that righting response. So you have to take the fish, पानी से बाहर निकालना है, उसकी dorsal side को ऊपर करना है, उल्टा करके वापस फेंकना है पानी में. अगर वो immediately अपने आप को वापस position में लाएगी, ventral side up होगा, dorsal नीचे होगा, that's again an indication कि fish ठीक है. जो fish diseased होगी, sluggish उसका movement होगा, वो ऐसे ही रहेगी कुछ देर. So it will be an indication that fish has some problem. That can be environmental, that can be. Then you have to check the ventilation. आप fish को बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के भी या पानी में भी रख के ऊपर surface पे आपको देखना है कि उसके gills जो है वो move कर रहे हैं कि नहीं. अगर वो proper इसका operculum उठा के आपको जो gill है वो movement दिखा रहा है, इसका मतलब है कि fish ठीक है. And the last is eye tracking. Eye tracking most students might have read, so you have to take the fish, उसको अपनी तरफ रखना है fish को, जो उसका right eyeball है, it should be in the right direction. Left eyeball should be in the left direction. अगर वो दोनों सामने की तरफ face कर रहे हैं, it means it has some problem. Okay? So we say eye tracking. Next aspect of the eye tracking is आप fish को उल्टा करो. ठीक? अगर उसने अपने eyeballs भी roll किए उसके साथ, that's again an indication fish is diseased. It's not able to maintain its eye position, ocular reflex. So now we will come to the infectious disease. There are a lot of n number of diseases that infect trout and common carp in general, but it's not possible to cover that all in one lecture. So I will just take you through the important diseases. So here we have listed the diseases based on the gram stadium of the bacteria. So you know gram negative and gram positive bacteria. Gram negative में हमारा जो सबसे common disease है वो है एडोमोनास. इसकी अभी बात कर रहा हूँ. उसके अलावा हमारे पास एडवर्स डायरिया इन्फेक्शंस भी होते हैं, बट उतने प्रेडोमिनेंट कश्मीर में नहीं. स्यूडोमोनास इन्फेक्शंस वो स्किन में होते हैं फिश के. कभी-कभार स्यूडोमोनास और एडोमोनास में इकट्ठे मिलता है फिश में. So then it's difficult to discriminate कि इसकी etiological agent कौन सा है. That's why we say skin infections are generally caused by gram-negative bacteria, which can include both Aeromonas as well as Pseudomonas. And Flavobacteriaceae में जो जिन्हें हम gliding bacteria कहते हैं, तो इसमें बहुत से बैक्टीरिया हैं और interestingly सभी बैक्टीरिया जो है normally जो cold water fishes के साथ associated होते हैं. तो वो मैं आगे एक-एक करके थोड़ा बताऊंगा. Gram-positive bacteria में हमारा Mycobacteria है, Streptococcus and Rhinobacterium salmonella. Next. So bacterial hemorrhagic septicemia, जो ये डिजीज है, इसे हम abdominal dropsy भी कहते हैं. ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है कश्मीर में. Most of the cases, जैसे 7 out of 10 cases जो होते हैं वो इसी और इसमें क्या होता है, जैसे मैंने पहले
का एरोमोनास और स्यूडोमोनास के इन्फेक्शंस आपको इकट्ठे मिलते हैं, सो वी कॉल इट को-इन्फेक्शन, टू स्पीशीज, बट प्रेडोमिनेंट जो इसमें होता है वो एरोमोनास होता है। अगर ये डिजीज प्रेडोमिनेंटली एरोमोनास कॉज करेगा तो फिश में जो डिजीज का नाम पड़ता है ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी में क्या होता है, फिश का जो बेली होता है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन इज अ क्लासिकल साइन ऑफ डिजीज, बट दैट डिजीज कैन बी बैक्टीरियल, वायरल और इवन न्यूट्रिशनल डिजीजेस। फॉर एग्जांपल अगर न्यूट्रिशन में इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, देयर मे बी एक्सुडेट फॉर्मेशन दैट कैन एक्यूमुलेट इन द एब्डोमिनल कैविटी, बट मोस्टली इट्स एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल वायरल, अंदर में ज़्यादा ड्रॉप्स नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर आप ये मैंने मेंशन किया है कि जो इस केस में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है फिश की, रेड रेड डॉट्स आपको उसकी स्किन पे मिलेंगे। इसके अलावा जो इसमें लेजेंस या जख्म आपको इसकी सरफेस पे मिलते हैं, तो वो एक हम नहीं कह सकते कि स्पेसिफिक साइन है, बट इट इज एन इंडिकेशन दैट फिश हैज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यहाँ पे आप देखोगे कि जो यहाँ पे बेली ड्रॉप्सी यहाँ पे एरो करके दिखा है, तो इसका जो ये बेली है इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है। ड्रॉप्सी या इसे हम एसाइड्स भी कहते हैं, पहले इसका नाम ड्रॉप्सी पड़ा था, सो अब तक वही चल रहा है, बट बीच में फिर इसका नॉमेनक्लेचर चेंज, ड्रॉप्सी एंड एसाइड्स दोनों सेम है। अगर ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन अदर देन एब्डोमिनल कैविटी किसी और जगह हो गया, फॉर एग्जांपल आइज के नीचे, इस तरह ह्यूमंस में भी होता है, वी कॉल इट एडिमा, या टांगों में भी हम देखते हैं कि फूल जाते हैं, तो उसमें भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है, दैट इज डिफरेंट, वी कॉल इट एडिमा। लेकिन बेली में जब होगा तब ड्रॉप्स या एसाइड्स आप कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लीडिंग भी इसके जो स्केल्स के नीचे अपैरेंट है। अदर डिजीज इज फ्रंकुलोसिस, ये पर्टिकुलरली ट्राउट्स और साल्मोनेड फिशेस को ये डिजीज होती है। इसका जो इटियोलॉजिकल एजेंट है वो भी एरोमोनास का ही है, लेकिन स्ट्रेन दूसरा है। उसमें जो था वो हाइड्रोफिला था, यहाँ पे साल्मोनेस है। तो इसके दो फॉर्म्स है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मींस जिसमें जो शॉर्ट लिव्ड होगा लेकिन इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा डेवस्टेशन के चांसेस है, खतरा है ज्यादा, तो इसमें हेमोरेज होती है फिन्स पे, टेल पे, मसल पे, गिल्स पे। लेकिन जो क्रॉनिक फॉर्म होता है उसमें वो एज अ कैरियर रहता है, ठीक। तो फिश ज्यादा साइंस मैनिफेस्ट नहीं करेगी, लेकिन इट कैन स्प्रेड डिजीजेस टू अदर वी कैन से इम्यूनोडेफिशिएंट फिशेस, तो वहां पे सिम्टम्स उसमें दिख सकते हैं। तो इसके भी दो फॉर्म्स हैं, टिपिकल और एटिपिकल। एक्चुअली जो एरोमोनास साल्मोनेसिडा है इसके अब सब स्ट्रेन्स हैं, जिस तरह आप पढ़ते हो स्प्रिनस कार्पियो स्पेकुलरिस, फिर कॉमन्स, तो इसी तरह एरोमोनास साल्मोनेसिडा के भी सब स्ट्रेन्स हैं। तो उसके टिपिकल सब स्ट्रेन्स भी हैं और एटिपिकल भी हैं। टिपिकल वाले जो हैं वो सिस्टमिक इन्फेक्शन करते हैं, ब्लड में इन्फेक्शन करते हैं। जो एटिपिकल है वो साइंस बाहर मैनिफेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्सर और लेजेंस इन द स्किन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंकुलोसिस में यहाँ पे आपको बॉयल्स नजर आएंगे, ठीक। तो ये बॉयल्स क्लासिकल साइन है फ्रंकुलोसिस के। अब जो ये वाला यहाँ पे ये इतना इस डिजीज से क्या होता है, फिश की मोर्टेलिटी कम होती है कंपेयर टू एरोमोनास, वहाँ पे ज्यादा आपको लॉस होगा। मोर्टेलिटी कैन रीच 70 to 80%, बट इस केस में मोर्टेलिटी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इसमें मार्केटेबिलिटी कम होती है। जो भी बंदा फिश ग्रो करेगा उसको कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर से इसमें इट्स वी कैन से इट्स प्रेजेंटेशन इज नॉट गुड, राइट। सो इससे मार्केट वैल्यू कम होता है। और जो इसमें क्लासिकल साइन यही है कि इसमें जो बॉयल्स बनते हैं स्किन पे, अब ये बॉयल्स जो हैं ये सिस्टमिक भी हो सकते हैं, फिश के इंटरनल ऑर्गन्स पे भी रह सकते हैं, बाहर नहीं होते, लेकिन जनरली ये बाहर ही रहते हैं स्किन पे। और कभी कभार ये आई बॉल्स के पीछे भी ये फ्रंटल ये बॉयल बनता है, तो इतना वो खतरनाक होता है कि वो आई बॉल को ही फिर बाहर निकालता है, ऐसा भी रिपोर्ट हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिजीज है जो ट्रॉमा करती है। नेक्स्ट, पेडंकल डिजीज, ये नाम से पता चलता है जो कॉर्डल पेडंकल है वहाँ जो फिश का टेल होता है उस रीजन में ये ज़्यादा असर करता है। तो इसका जो इटियोलॉजिकल एजेंट है वो फ्लेवोबैक्टीरियम साइटोफिलम है। इसका दूसरा नाम है कोल्ड वाटर डिजीज और रेनबो ट्राउट फ्लाई सिंड्रोम। ये फ्लाई में ये ज़्यादा देखने को मिलता है ये डिजीज, ठीक। तो इसमें कॉर्डल पेडंकल, आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका कॉर्डल पेडंकल ऑलमोस्ट जो है नेक्रोटिक हो गया है और इसमें अल्सर आपको दिख रहा है। तो अगर ये ज़्यादा एक्सटेंसिव होगा तो इसका जो है जो टेल रीजन ये पूरा कट होता है, बाकी जो फ्रंट रीजन। तो इसमें हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं। जनरली जो है वी से दैट 3 एंटीबायोटिक्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन फिश। 3 का जो FDA ने अप्रूवल दिया है, तो उसमें आपका यही एक टेरामाइसिन ये भी आता है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन,
दूसरा आता है फ्लोरफेनिकोल। लेकिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये आपको किसी भी शॉप से मिलेगा, बाहर वेटरनरी से भी आप ला सकते हो, तो उनके पास पैकेट्स होते हैं दैट यू कैन यूज इन फिशेस। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, नॉट ओनली ग्राम नेगेटिव बट ग्राम पॉजिटिव के लिए भी इफेक्टिव है और FDA ने अप्रूव किया है। तो ये आप फीड में भी दे सकते हो, पानी में भी दे सकते हो मिला। नेक्स्ट, ये डिजीज है माइकोबैक्टीरियोसिस, ये ज़ूनोटिक डिजीज है, मींस इसका खतरा इंसानों को भी लगने का है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम मेराइनम या माइकोबैक्टीरियम फॉर्ट्यूटम। तो ये डिजीज है ये जनरली ऑर्नामेंटल फिशेस में होती है। हालांकि नाम मेराइनम में इसका है, लगता है मरीन से आया है, लेकिन पहले ये ओरिजिनेट वहाँ हुआ है तो इसीलिए वो वाला नाम है। लेकिन ये फ्रेश वाटर फिशेस को भी इन्फेक्ट करता है। इट्स बेस्ड ऑन इट्स फर्स्ट आइसोलेशन। तो फिर इसकी दूसरी स्ट्रेन इन्होंने ये पाई है फॉर्ट्यूटम, लेकिन अभी जो रिसेंट डेटा आया है उसमें ये कहते हैं कि ये दोनों एक ही स्पीशीज है, लेकिन ऑफिशियली नहीं आया है, तो अभी हम मेंशन अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन ये इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सभी फिशेस को इन्फेक्ट करता है। प्रेडोमिनेंटली ये एक्वेरियम फिशेस को इन्फेक्ट करता है। जो बंदा एक्वेरियम के साथ डील करता हो तो उसमें चांसेस है कि ये इन्फेक्शन उसको लग सकता है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन होती है जिसके हाथ से वो डील करता होगा, तो वहाँ पे एक रेडनेस आती है, तो उसको हम कहते हैं फिश टैंक ग्रेनुलोमा। आपने सुना होगा फिश टैंक ग्रेनुलोमा मींस जो टैंक के साथ बंदा डील करता है उसको ग्रेनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन होती है स्किन में, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पैथोजन। उतना सीरियस नहीं है लेकिन जनरली इन्फेक्शियस, क्योंकि इंसानों को लगता है तो ये इस कैटेगरी में ज़ूनोटिक में आता है। नेक्स्ट, ये इसके इंटरनल साइंस है, इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम एक ओवरव्यू ले लेंगे सब डिजीज का, नहीं तो एकदम बाकी चलेगा। फंगल डिजीज में आपको पता है सबसे कॉमन डिजीज जो यहाँ है वो है सेप्रोलेगनिया। सेप्रोलेगनिया इन्फेक्शंस जो होते हैं जनरली, फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं ये सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं। मींस जब पहले बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा या वायरस करेगा तब जाके फंगस इसमें अटैक करेगा। लेकिन अब नेसेसरी नहीं है कि इट्स नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि उसमें इन्फेक्शन लगना चाहिए। अगर फिश को किसी वजह से कोई इंजरी हो गई तो इट्स टिश्यू विल बी एक्सपोज्ड एंड दी we can say oocytes in the environment, तो उसमें डिग इन करके उसकी स्किन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फिश में एक कॉटन लाइक ग्रोथ देखने को मिलती है, इसीलिए इस डिजीज का नाम है कॉटन वूल डिजीज। सेप्रोलेगनिया को कॉटन वूल डिजीज बोलते हैं। तो इनिशियल स्टेज में वो वाइट अपीयरेंस होती है, लेकिन फिश पानी में रहती है तो फिर वो मड के साथ ही तो वो लेटर ऑन स्टेज में इट बिकम्स वी कैन से ब्राउन, वाइटिश ब्राउन रेजिन्स आगे बनते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस डिजीज का। इसी कंटेक्स्ट में नेक्स्ट आ जाओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉटन लाइक ग्रोथ है। जो नीचे वाली पिक्चर है वो ट्राउट की है, तो इसमें वाइटिश डिस्कलरेशन है और ये एक्चुअली ऐसा लगता है कि कॉटन है वहाँ पे, एक्चुअली दिस इज अ फंगस। फंगल डिजीज में ये होता है कि वो जर्म्स के अंदर चला जाता है स्किन। नेक्स्ट, सो ब्रांचियोमाइकोसिस ये एक और डिजीज है जो फिशेस को इन्फेक्ट करती है, पर्टिकुलरली गिल्स को। तो ये भी फंगल इन्फेक्शन है। तो जिस डिजीज में गिल का इन्फेक्शन हो, फ्लाइबोबैक्टीरियम ब्रैंकियोफाइलम एक पैथोजन है जो गिल को इन्फेक्ट करता है। देखा गया है कि उस डिजीज में ब्रैंकियोमाइकोसिस का भी ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि ये को इन्फेक्शन करता है और कार्प्स, गोल्ड फिश, जो फ्रेश वाटर फिश जिसमें आपकी ट्राउट भी आती है, तो उसको भी ये इन्फेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हो, इतना क्लियर नहीं है, लेकिन जो आपको येलोविश बीच में दिखता है अमंग द रेड, तो ये गिल मॉडलिंग हुई है, गिल खराब हुआ है फिश का बिकॉज ऑफ दिस पिसिन पैथोजन। नेक्स्ट, तो वायरल डिजीजेस की अगर बात करेंगे ट्राउट्स की तो वो बहुत सारी है, लेकिन अब तक जो नॉर्दर्न इंडिया है, इवन इंडिया एज अ होल एट लार्ज, हमें कोई वायरल डिजीज नहीं हुई है। लेकिन वी सस्पेक्ट देयर इज अ VHSV इन्फेक्शन। सस्पेक्ट है तो इस पे जो हमारे सर्वेलेंस प्रोग्राम्स हैं चल रहे हैं नेशन वाइड पैन इंडिया, तो उसमें उन्होंने अभी रिसेंटली बोला है कि आप वायरल डिजीज पे ज़्यादा स्क्रीन करो, क्योंकि वायरल डिजीज ऑल्दो इट्स वी कैन से प्रिवेलेंस एट द इनिशियल स्टेज इज लेस, बट एक बार ये सिस्टम में आ गया तो ये बहुत हैवक क्रिएट करता है और इसमें मोर्टेलिटी 100% हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये वो 4 पैथोजन जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इसमें से जो पहले 3 है VHSV, SECV और IHN, तो ये तीनों रैबिडो वायरस हैं। जो वायरस रेबीज कॉज करता है तो उसी फैमिली से ये 3 वायरस हैं, और ये तीनों वायरस जो हैं ये OIE रिपोर्टेबल है, मींस जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है, इस पे वर्ल्ड में नजर रखेंगे इस
इसका क्या स्टैटस है, क्योंकि ये बहुत टाइम से जो है एक्वाकल्चर इंडस्ट्री को बहुत लॉस करा रहे हैं, पर्टिकुलरली साल्मोनेट और ट्राउट फिश इंडस्ट्री को। तीनों जो है ये इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि ये आरएनए है या डीएनए, तो उससे वो फिर मॉलिक्यूलर तक पहुंच जाएगा, लेकिन ओवरऑल हमें ये देखना है कि ये तीनों डिजीज जो लेफ्ट साइड से हैं ये ओआई रिपोर्टेबल है, इंक्लूडिंग द आईपीएमपी जो इन्फेक्शियस पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस वायरस। तो ये तीनों डिजीजेस में सेप्टिसीमिया एक जो पहली डिजीज है उसमें सेप्टिसीमिया होता है। सेप्टिसीमिया मींस ब्लड इन्फेक्शन। ये दो चीजें हैं सेप्टिसीमिया स्टूडेंट्स के लिए, सेप्टिसीमिया और वायरीमिया, बैक्टीरियमिया, ये तीन टर्म्स हैं। सेप्टिसीमिया मींस जस्ट अ ब्लड इन्फेक्शन, बैक्टीरियमिया आल्सो मींस ब्लड इन्फेक्शन विद बैक्टीरिया, but and viremia as you can yourself decide that it is actually virus multiplying in the blood, right? But the difference is in septicemia there can be motile or non-motile pathogens. There may be blood infection but you may not be able to isolate motile bacteria, means infection हुआ होगा लेकिन सिस्टम में अभी भी है। लेकिन जब हम बैक्टीरिया की बात करेंगे या वायरीमिया की, तो इसका मतलब है इसमें मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया एंड मल्टीप्लाइंग वायरसेस है, तो ये फर्क है। तो इसी सेप्टिसीमिया जो मैंने डिजीज बोली उनमें भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन कौन करता है? वायरस। दूसरा वायरस जो है जो पैनक्रियाज को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शियस पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस, मींस नेक्रोसिस मींस सेल डेथ, तो पैनक्रियाज के सेल्स की डेथ करता है और जो उसके साथ साथ बाकी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, पर्टिकुलरली हेड किडनी, तो वहाँ पे इन्फेक्ट करता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट चारों इंपॉर्टेंट डिजीज है वर्ल्ड वाइड, लेकिन अब तक यहाँ रिपोर्ट नहीं हुई है। इसी तरह पैथोजेंस में जो पैरासिटिक डिजीजेस हैं, जो पैरासाइट्स डिजीज कॉज करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा खतरा जो रहता है वो भी जूनोटिक डिजीज होती है। लेकिन हमारे यहाँ इसका ज़्यादा खतरा नहीं है क्योंकि हम कुक्ड जो प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाते हैं, लेकिन जो रॉ फिश ईटिंग कंट्रीज हैं जो साउथ ईस्ट एशिया है, तो उनमें सबसे ज़्यादा खतरा रहता है कि वो इस डिजीज़ को कैच कर लेते हैं। बहुत से पैथोजेंस हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं ह्यूमन्स में, तो उनका जो एक्चुअली cuisine होता है खाने का, so they take a lot of fish and they have developed their own जो चटनी टाइप होती है उससे हम वसाबी कहते हैं, so they mix it, they say that this wasabi is anti-parasitic, ठीक? तो वो लेके वो खाते हैं, but it's a myth और it may have some efficacy, but we should always eat cooked products, but उनका वो अपना एक हिस्ट्री है, तो वो मेंटेन वो डिजीज के आउटब्रेक्स भी वहीं रहते हैं। नेक्स्ट, ये लास्ट पार्ट है एनवायरमेंटल डिजीज का, इसमें 2-3 डिजीज टोटल हैं, तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज जो है नेक्स्ट स्विम ब्लेडर सिंड्रोम। तो जब वाटर क्वालिटी में कुछ भी चेंज आ जाए, इसका एक्चुअल इटियोलॉजिकल एजेंट नहीं पता है, तो लेकिन जब वाटर क्वालिटी खराब होती है तो देखा गया है कि देयर इज अ स्ट्रेस रिलेटेड स्विम ब्लेडर इन्फ्लेमेशन। तो इसमें यहाँ लिखा है कि जो स्विम ब्लेडर है इसमें ज़्यादा एयर चला जाता है, तो उसकी वजह से एब्डोमेन में डिस्टेंशन आ जाता है। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर आप इसके एब्डोमेन को पियर्स करो ताकि वो एयर वापस तो फ्लोट ना करे, तो ये नॉर्मल स्विम करे पानी में। ये डिजीज जो जनरली जो फिशेस होती हैं जो एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट ले जाती हैं, कुछ फिशेस पर्टिकुलरली साल्मोनेट्स में देखा गया है कि जब उनका स्मोल्ट ट्रांसफर, तो उस स्टेज में उनको चांसेस हैं इस डिजीज के, वो नेक्स्ट एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। नेक्स्ट गैस बबल डिजीज, ये पता है आपको, जब पानी में ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से उसमें बबल्स बनते हैं। अब इसके दो तरीके, या वो बबल्स छोटी फिश डायरेक्टली खाएगी तो उससे वो चोक हो जाएगी, जो फ्राई होगी वो दैट कैन डायरेक्टली mistakenly as they can take it as a food. So in that way the fish gills और जो उसका हम कहते हैं ऊपर कलर कैविटी वो चोक हो जाती है, उससे फिश मर जाएगी। जो बड़ी फिश है उसमें क्या होगा, क्योंकि पानी में कंसंट्रेशन ज़्यादा है ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन की, तो उससे ब्लड में जो है बबल्स बनते हैं, तो उससे उसमें जो हम एम्बोलिज्म या एक ऑब्स्ट्रक्शन उसके वेसल्स में, उससे भी फिश मर जाती है। तो इट्स मेनली रिलेटेड टू ऑल्टीट्यूड। जिस तरह हम कहते हैं कि लद्दाख में या पानी में जो डाइवर्स होता है, अगर वो प्रॉपर वो अपना इक्विपमेंट जस्ट स्कूबा डाइविंग में करते हैं, वो नहीं रखेंगे तो प्रेशर से गैस बबल। तो लास्ट जो हमारा है वो है डर्मल नेक्रोसिस। ये भी एक डिजीज है जो यूवी लाइट से जब फिश में पड़ेगी, तो जब एंटार्क्टिका वगैरह है तो
वहाँ पे देखा गया है कि वहाँ पे यूवी लाइट्स का ज़्यादा जो इन्फ्लक्स है ऑन दैट पार्ट, तो उससे देखा गया उसकी स्किन में जो है डर्मल नेक्रोसिस होती है, तो मींस सेल डेथ हो जाती है उसके स्किन की, पर्टिकुलरली उसका एपिडर्मिस होता है। तो ये एनवायरमेंटल डिजीज है, ऑल्दो अमंग दीज डिजीजेस ओनली गैस बबल डिजीज इज द वन व्हिच वी शुड फोकस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेनबो ट्राउट और कॉमन ट्राउट। तो ये एक ओवरव्यू था डिजीजेस का जो फिशेस को इन्फेक्ट करती है। तो दिस इज वन एस्पेक्ट एंड प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज में अब जाओ नेक्स्ट। तो सबसे बेस्ट है वो आपको डॉक्टर मंसूर बता सकते हैं, क्योंकि दे आर द वंस हु आर डीलिंग विद द फार्म्स, राइट। सो आई कैन जस्ट मेंशन दैट हमारे हेल्थ के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट है बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो आपको बायोसिक्योरिटी और बायोसिक्योरिटी एंड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो बायोसिक्योरिटी में आपको यही है कि आपको जो सीड आप लाओगे वो एक हैचरी से, लाइसेंस हैचरी से होना चाहिए। अगर वो नहीं है, एटलीस्ट यू शुड ब्रिंग इट फ्रॉम अ फार्म वेयर देयर इज नो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द डिजीज। तो उसको लाने के बाद आपको उसको डिसइंफेक्ट करना है कि उससे देन टेम्परेचर चेक करना है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स इन लाइन जहाँ से आपने वो लाया हो, तो उन चीज़ों से फिश का जो स्ट्रेस है वो कम होगा और डिजीज आउटब्रेक के चांसेस ज़्यादा हो, सॉरी डिजीज आउटब्रेक के चांसेस कम होंगे। और जो यहाँ पे आप फार्म आपका है उसको आपको नेट से कवर करना है ताकि उसमें पोचिंग भी ना हो, और जो फिश जो बर्ड्स होते हैं, फिश ईटिंग बर्ड्स, तो उससे भी वो बच जाए। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे जो मैंने इस प्रेजेंटेशन में कवर किए। तो बाकी आई थैंक यू ऑल एंड आई विश यू गुड लक फॉर दिस प्रोजेक्ट। Thank you so much, sir, for delivering such an elaborative lecture on disease management in freshwater aquaculture, especially the that diseases you have mentioned, like the fungal diseases, Saprolegnia species or the Aeromonas, and showing all the symptoms and treatments. It would be a very beneficial thing to all the candidates who are planning to utilize their potential in entrepreneurship. Definitely it will help them to rear a fish in a good medium water and maintaining all the parameters for the survival of fishes. Thank you so much, sir.